Hello, lovely people, good wishes, and a warm welcome to all. So, today we are here with another lecture on determinants. In the previous lectures, we discussed some basics about determinants and different methods to evaluate the determinants. And in this lecture, we are going to study some other topics related to these, like conjugate elements, types of determinants, how do we multiply two determinants, and applications of determinants. How can we apply the knowledge we have gained solve some of the problems, and then we will be moving forward towards the grammar rule. Without further delay, let's get started. So our first topic here is conjugate elements. What are conjugate elements? First of all, conjugate elements are defined for determinant. Now, in the case of determinants, to understand this, I'm taking the example of a order 3 determinant. Let us say this is an order 3 determinant. Let me name it as a determinant. Now, in this case, I will illustrate how to find out the conjugate elements. For that, first of all, we need to identify the leading diagonal or the principal diagonal. Now, these A1, B2 and C3, these are the diagonal elements, and these three elements are lying on the principal diagonal. So, this is our principal diagonal we have identified. Now, after this, what we will do is we will draw some lines which will be perpendicular to the leading diagonal. For example, this is a line which is perpendicular to the leading diagonal. This is another line which is perpendicular to the leading diagonal. Let us name this line as X. This is the line Y. And let us say this is another line, the third line, which is perpendicular to the leading diagonal. Now, these conjugate elements lie on these perpendicular lines. These X, Y, and Z lines are the perpendicular lines on the principal diagonal, and conjugate elements lie on them. Now, if I talk about line X, so in that line, we are having two elements, A2 and B1, which are off-diagonal elements. And we see here that B1 and A2 both are at equal distances from this leading diagonal. A2 और B1 दोनों leading diagonal से या principal diagonal से equal distances पर है on a line which is perpendicular to this principal diagonal. So these form a pair of conjugate elements. So A2 B1 जो है वो एक pair of conjugate elements है. Similarly, एक और line हमने consider की Y which is perpendicular to this leading diagonal. इस लाइन पर लाई करने वाले दो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है A3 एंड C1. A3 और C1 ये दोनों प्रिंसिपल डायगोनल से इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं, तो इस वजह से ये कंजुगेट एलिमेंट्स का पेयर फॉर्म करेंगे. सिमिलरली वी हैव द लाइन Z पर भी हमारे पास दो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं B3 एंड C2. दे आर लाइन at equal distances from this leading diagonal, so these also form a pair of conjugate elements. तो हमने यहाँ पर देखा कि ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में हमें 3 पेयर ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स मिल रहे हैं. This is how we define conjugate elements, that they are two equidistant elements which are lying on a line perpendicular to the leading diagonal. Now we move towards our second topic, which is the types of determinants. Now we are having here two types of determinants. One is orthosymmetric determinant and next one is skew symmetric determinant. Let us discuss them one by one. So first of all, in case of orthosymmetric determinant, a determinant, let us say this was our general 3-order determinant, a determinant. Now when this general determinant will be named as an orthosymmetric determinant. Now answer of this question is that if this general determinant satisfies some properties, two properties basically, then it will be known as an orthosymmetric determinant. What are those two properties? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि लीडिंग डायगोनल पर लाई करने वाला हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल. इन दिस जनरल डिटर्मिनेंट ए, अगर यहाँ पर A1, B2 एंड C3 these three are diagonal elements, तो अगर ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स को मैं इक्वेट कर दूं, लेट अस से आई एम मेकिंग सम चेंजेस इन दिस जनरल डिटर्मिनेंट ए. क्या चेंजेस किए? फर्स्ट चेंज तो मैंने यही किया कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबको इक्वल कर दिया. लेट अस से A1, B2 और C3 को तीनों को इक्वेट मैंने कर दिया. लेट अस से दीज आर इक्वल टू सम कांस्टेंट A. नेक्स्ट एक और चेंज हमें करना है इसमें, क्या कि जो भी कंजुगेट एलिमेंट्स हैं उन्हें हम इक्वल कर देंगे, कंजुगेट एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे. यहाँ पर
इस जनरल डिटर्मिनेंट में हमने देखा 3 पेयर्स ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स आए। उन कंजुगेट एलिमेंट्स को हमें इक्वेट करना है। फर्स्ट पेयर इज A2 B1. A2 is equal to B1, let us say it is H. A3 और C1 एक और कंजुगेट एलिमेंट का पेयर है, तो यहाँ पर A3 और C1 को भी मैंने इक्वेट कर दिया, जैसे दिस इज G, एंड B3 एंड C2, B3 एंड C2 इन दोनों को भी मैंने इक्वेट कर दिया, एंड लेट अस से दिस। तो जब मैंने ये सभी चेंजेस किए कि डायगोनल एलिमेंट्स को सेम कर दिया एंड जो भी कंजुगेट एलिमेंट्स थे उनको इक्वेट कर दिया इन अ जनरल डिटर्मिनेंट, देन वी गेट a new determinant which is this B determinant, and this B determinant is known as orthosymmetric determinant, जहाँ पर लीडिंग डायगोनल पर लाई करने वाला हर एक एलिमेंट इक्वल है, प्लस जो भी कंजुगेट एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल। So this type of determinant is known as orthosymmetric determinant. Now let's move towards the skew symmetric determinant. जिस तरह से हमने एक जनरल डिटर्मिनेंट में कुछ चेंजेस करके ऑर्थोसिमेट्रिक डिटर्मिनेंट फॉर्म किया, उसी तरह से हम कुछ और चेंजेस करेंगे इस जनरल डिटर्मिनेंट में, एंड वी विल गेट द स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट भी 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज all the elements of principal diagonal are zero. That means कि जितने भी diagonal elements हैं वो zero होने चाहिए। ऑर्थोसिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में सभी डायगोनल एलिमेंट्स को हमने इक्वेट किया था, तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट फॉर्म करने के लिए यहाँ पर जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस जनरल डिटर्मिनेंट A वी आर हैविंग 3 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स व्हिच आर A1, B2 एंड C3। तो A1, B2 और C3 सभी को मैं 0 के इक्वेट कर दूंगी टू गेट द स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। This is the first change I have made in this general determinant. Now the next change which I have to do is कि जो भी conjugate elements हैं they should be negative of each other. हर एक conjugate element को एक दूसरे का negative बना दो। यहाँ पर general determinant में 3 pairs थे conjugate elements के, तो first pair is A2 B1. लास्ट केस में ऑर्थोसिमेट्रिक डिटर्मिनेंट के केस में हमने A2 को B1 के इक्वल किया था, यहाँ पर मैं A2 को नेगेटिव ऑफ B1 कर दूंगी such that both the conjugate elements are negative of each other. Similarly जो सेकंड पेयर है conjugate elements का which is A3 and C1, A3 और C1 को भी मैं एक दूसरे का नेगेटिव बना दूंगी। Similarly B3 and C2, these will also be the negative of each other. अगर मैं ये सारे changes इस जनरल डिटर्मिनेंट A में करती हूँ, then I will be getting a skew symmetric determinant, and skew symmetric determinant will be looking like this. Determinant C is the skew symmetric determinant. Here we can see that all the diagonal elements are 0 and जो conjugate elements हैं they are negative of each other. तो इस तरह के changes अगर मैंने जनरल डिटर्मिनेंट में किए तो मेरे पास एक प्री ऑर्डर का skew symmetric determinant मिला। So this was the skew symmetric determinant. Now we move towards the properties of skew symmetric determinant. Skew symmetric determinant जो है वो 2 orders के हो सकते हैं, even order और odd order. Because एक तो determinant होता है that is 2 order, 3 order, 4 order, कितने भी order का determinant हो सकता है। उस determinant को हम 2 orders में classify करते हैं, odd order determinant and even order determinant. Now for a skew symmetric determinant which is having odd order, तो उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 आएगी। जब भी हमारे पास एक skew symmetric determinant होगा और उसका ऑर्डर odd होगा, then its value will always come out to be 0. For example, this is a skew symmetric determinant which we named as C determinant. तो ये जो skew symmetric determinant है ये order 3 का determinant, and its value should come out to be 0 always. तो सिमिलरली 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, 5 ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का, 9 ऑर्डर का, जितने भी ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स होंगे वो सभी 0 होंगे। इसको हम इस एग्जांपल से भी रिलेट कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करूं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो इट शुड कम आउट टू बी 0। लेट अस सी वेदर इट कम्स आउट और नॉट। तो इसे हम एक्सपैंड करते हैं, दिस विल बी 0 मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर and this will be plus a. जो सिंपल एक्सपैंड कर रहे हैं हम इसे, this will be 0 plus bc and this will come out to be minus b into ac. This will be 0 plus abc minus abc. This will be 0. So c determinant is coming out to be 0 because it is a skew symmetric determinant and it is of odd order. Similarly, अगर हमारे पास even order का skew symmetric determinant हो, then what will happen?
देन इवन ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज। अगर ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6 एक्सेट्रा इवन ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स होंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, सम क्वांटिटी स्क्वायर। उनकी वैल्यू को हम हमेशा इस तरह से लिख सकते हैं कि सम क्वांटिटी का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग हेयर दिस डिटर्मिनेंट बी से is a two order determinant. Two order determinant है तो it should come out to be a perfect square. तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे तो दिस विल बी 0 माइनस माइनस ए स्क्वायर दिस अ परफेक्ट स्क्वायर। इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगा दैट विल कम आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर, जबकि ऑड ऑर्डर का जो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगा दैट विल वैनिश। So these were the two properties of skew symmetric determinants. Now we move towards our next topic. Now our next topic is how to multiply two determinants. जिस तरह से हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की थी कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या उनकी कंडीशंस होती है मल्टीप्लिकेशन की, उसी तरह से यहाँ पर हम टू डिटर्मिनेंट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने की सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि जो भी दो डिटर्मिनेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं दे शुड बी हैविंग द सेम ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल here we are using three order determinants to illustrate this. First of all, let us say this is the determinant A, which is a three order determinant, and B determinant is this, which is also a three order determinant. So इनकी multiplication possible है। A determinant can be multiplied with the B determinant because both are having the same order 3. Now मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केसेस में हमने क्या किया था, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन की। एक मैट्रिक्स का रो सिलेक्ट करते थे एंड सेकंड मैट्रिक्स का हम लोग कॉलम सिलेक्ट करते थे और उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते थे तो हमारे पास एलिमेंट्स मिल जाते थे प्रोडक्ट मैट्रिक्स के। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट के केस में हम लोग रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट की एक रो सिलेक्ट करेंगे, उसे हम सेकंड डिटर्मिनेंट की किसी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दो रोज को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना। Now, if we multiply determinant A and determinant B, now let us say we get the product determinant as C. Now इस C determinant के जितने भी components हैं वो हमें find out करना। तो let us say C determinant यहाँ पर थ्री ऑर्डर के determinant को हमने multiply किया है तो product में जो determinant हमें मिलेगा that will also be having order 3. तो order 3 का determinant है, it will be having 9 elements. Let us say these elements are P, Q, R, X, Y, Z and let us say T, W and so these are the elements we have supposed कि A और B determinant को जब हम multiply करेंगे तो हमें C determinant मिलेगा and C determinant will be having these components. इन components को हमें find out करना है। अगर मैं इन elements को general name दूं तो P क्या है? P is the A11 element, Q is the A12 element, R is the A13 element, X is the A21 element, Y is the A22 element, Z is the A23 element of the determinant. These are the general names of these elements. T is the A31 element, W is the A32 element, and V is the A33 element. Now, first of all, let us say हमें A11 element find out करना है for the C determinant. A11 element यहाँ पर रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स देखना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम यही करते थे, किसी भी एलिमेंट को जब हमें फाइंड आउट करना था तो हम रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स देखते थे, उसके अकॉर्डिंग रोज और कॉलम सेलेक्ट करते थे टू बी मल्टीप्लाई। सिमिलर मैनर में यहाँ पर हमें रो और कॉलम इंडेक्स को देखकर रो सेलेक्ट करनी है। रो इंडेक्स जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो सेलेक्ट करेंगे एंड कॉलम इंडेक्स की हेल्प से हम लोग सेकंड डिटर्मिनेंट की रो आइडेंटिफाई करेंगे। A11 एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है तो दिस इज द रो इंडेक्स इज 1, दैट मींस कि A डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो का यूज करेंगे। कॉलम इंडेक्स हियर इज 1, कॉलम इंडेक्स 1 होने की वजह से B डिटर्मिनेंट का भी हम लोग फर्स्ट रो सिलेक्ट करेंगे। अब इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करना है एंड वी विल गेट द एलिमेंट A11। दो रोज को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड करेंगे। तो A1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 1, B1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 एंड C1 गामा 1, तीनों प्रोडक्ट्स को हमने ऐड किया, देन वी विल गेट द एलिमेंट हियर। सिमिलरली हम लोग
A12 एलिमेंट देख लेते हैं। अगर प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट C का A12 एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना हो तो हाउ वी विल डू दैट? A12 एलिमेंट, अब दिस एलिमेंट जो भी जनरल एलिमेंट है उसकी हेल्प से हम लोग सबसे पहले रोज आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी रोज को हमें मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग रो बाय कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करते थे। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सिलेक्ट करते थे एंड सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम सिलेक्ट करते थे टू बी मल्टीप्लाई। इन डिटर्मिनेंट्स के केस में हम दोनों डिटर्मिनेंट्स के लिए रो सिलेक्ट करेंगे। तो A12 एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। रो इंडेक्स इज 1, रो इंडेक्स 1 होने की वजह से A डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो सिलेक्ट करनी है एंड बिकॉज कॉलम इंडेक्स इज 2 दिस मींस कि B डिटर्मिनेंट की हमें सेकेंड रो सिलेक्ट करनी है। नाउ आफ्टर सिलेक्टिंग द रोज वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई देम। A1 अल्फा 2, B1 बीटा 2 एंड C1 गामा 2, इन सभी प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे देन वी विल गेट आवर एलिमेंट Q व्हिच इज द जनरल A12 एलिमेंट ऑफ C डिटर्मिनेंट। सिमिलर मैनर में बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं A21, A22, A23 एंड बाकी जितने भी एलिमेंट्स रिमेनिंग हैं उन सभी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस अनदर एलिमेंट्स। लेट अस से y एलिमेंट, मुझे y एलिमेंट फाइंड आउट करना है फॉर डिटर्मिनेंट C। y एलिमेंट इज द A22 एलिमेंट, A22 एलिमेंट है दिस मींस रो इंडेक्स इज 2, रो इंडेक्स 2 होने की वजह से A डिटर्मिनेंट की सेकंड रो सिलेक्ट करेंगे। कॉलम इंडेक्स इज 2 दैट मींस कि B डिटर्मिनेंट की भी सेकंड रो सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करके हमें एलिमेंट y यानी कि दिस A22 एलिमेंट मिलेगा। तो A2 अल्फा 2, B2 बीटा 2 एंड C2 गामा 2, इस तरह से हमें ये y एलिमेंट मिलेगा तीनों प्रोडक्ट को ऐड करके। सिमिलरली लेट अस से वी हैव टू फाइंड दिस एलिमेंट W। W एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। W एलिमेंट इज द जनरल A32 एलिमेंट। अगर ये A32 एलिमेंट है, रो इंडेक्स इज 3, रो इंडेक्स 3 होने की वजह से इसका मतलब क्या है कि मुझे A की थर्ड रो सिलेक्ट करनी है एंड कॉलम इंडेक्स इज 2 दिस मींस कि B की सेकंड रो सिलेक्ट करनी है। A की थर्ड रो को B की सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A3 अल्फा 2, B3 बीटा 2 एंड C3 गामा 2, ये सभी प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे देन वी विल गेट आवर एलिमेंट W। यहाँ पर हमें एलिमेंट Y। तो इसी तरह से जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग द सुटेबल रोज इन बोथ द डिटर्मिनेंट। तो जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें फाइंड आउट करने के ट्राई करना। जो भी आंसर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दिस वाज हाउ वी मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट्स। दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उन दोनों का जो भी ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए एंड ओनली दे कैन बी मल्टीप्लाई। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हम लोग किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से वो ज्योमेट्री में हेल्प करता है, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। So we will be studying here three applications of determinants. First of all is to find out the area of a triangle whose vertices are known. अगर हमारे पास एक ऐसा triangle है जिसके vertices हमें पता है, let us say we are having a triangle ABC, A, B and C, तीनों vertices हमें पता है, that means कि A, B and C points के coordinates हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, किस तरह से इस triangle का area find out करेंगे in terms of these vertices using the determinant। उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए वो चीज हमने अर्लियर क्लासेस में डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल हियर लेट अस से वी आर हैविंग अ ट्राइंगल। मान लेते हैं ये A वर्टेक्स है, ये B वर्टेक्स है एंड दिस इज द C। तो A, B and C all the 3 points are known। तो ये तीन वर्टिसेस हैं ट्राइंगल ABC के एंड इस ट्राइंगल का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स की फॉर्मेट में मुझे एरिया को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहली बात तो अगर वर्टिसेस ट्राइंगल के मुझे पता है देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग दिस फॉर्मूला। दिस इज द इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 की हेल्प से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी थी। तो वहां से हमें पता है कि जो एरिया होगा एक ट्राइंगल का whose vertices we know is this। Now इसी फॉर्मूला को हम डिटर्मिनेंट्स की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे।
उसके लिए सबसे पहले इसमें ये टर्म है y2 माइनस y3, y1 माइनस y3 एंड y1 माइनस y2। ये जो 3 टर्म्स है जो कि y कोऑर्डिनेट से बनी है, सबसे पहले इन तीनों टर्म्स को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जांपल से y2 माइनस y3 की जो टर्म है उसे हमें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। y2 माइनस y3 को हम कैसे लिख सकते हैं? y2 into 1 minus y3 into 1. Now this expression in terms of determinant will be written like this: y2, y3, 1 and 1. इस determinant को अगर मैं solve करूँ, this will be y2 into 1 minus y3 into 1 will give me this term y2 minus y3. तो y2 minus y3 की जो टर्म है उसे हमने डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। सिमिलर मैनर में y1 माइनस y3 की जो टर्म होगी उसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। एंड इन द सिमिलर मैनर y1 माइनस y2 विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट लाइक। तो यहाँ पर सबसे पहले y कोऑर्डिनेट्स की जो भी टर्म्स थी उन्हें हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख लिया। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास रिमेनिंग है हाफ के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं एक 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। वो कैसे? ये पूरा एक्सप्रेशन दिस विल बी इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। अगर ये जो डिटर्मिनेंट है जिसमें फर्स्ट कॉलम में x कोऑर्डिनेट्स है, सेकंड कॉलम में y कोऑर्डिनेट्स है, थर्ड कॉलम में इसका कंसिस्टिंग ऑफ 1, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं सॉल्व करूँ दिस विल गिव मी दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC whose vertices are this। तो हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर एरिया लिखा कैसे? हाफ इनटू एक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे फॉर्म होगा? यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हम x कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। अगर ट्राइंगल ABC है तो A के A, B एंड C इन तीनों के x कोऑर्डिनेट्स हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट का जो सेकंड कॉलम होगा उसमें हम सभी y कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तीनों वर्टिसेस के, एंड थर्ड कॉलम में हम सिर्फ एलिमेंट 1 लिख देंगे। तो हमारे पास ये पूरा एक डिटर्मिनेंट बनेगा। हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लाइक दिस। तो ये जो फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 2 और यू कैन से एक्सप्रेशन नंबर 2, ये हमें रिमेंबर रखना है। इस तरह से हम लोग ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब एरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें रिमेंबर रखने हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बट यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है x1, x2, x3, y1, 2, y3 एंड 1, 1, दिस डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो भी एरिया आना चाहिए वो तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा एरिया है उसको लिखने से पहले इसका मॉडुलस ले लें। यहाँ पर डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी उसे 2 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, उस वैल्यू का मॉडुलस ले लेंगे। दैट मॉडुलस विल गिव मी द एग्जैक्ट एरिया। लाइक लेट अस से यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट था किसी ट्राइंगल के लिए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई ए। नाउ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए आई, उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज नॉट द एरिया, क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे। This mod will give me the area of a triangle because area is always a positive quantity। तो यहाँ पर इस a की वैल्यू यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, दोनों केसेस में हमारे पास एरिया पॉजिटिव बनेगा। दिस इज वन थिंग, एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग मॉडुलस का यूज करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसका मॉड लेने के बाद हम एरिया लिखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि एक ट्राइंगल का एरिया अगर हमें गिवन हो तो कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम लोग दोनों साइंस लेकर चलेंगे। दैट मीन्स कि लेट अस से हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का एरिया क्या है, 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए ये जो एरिया होगा उसे हम ±3 लेकर चलेंगे। इन जनरल एरिया जो होता है वो सम वैल्यू का मॉड होता है ना। एरिया जो होता है जब भी हम लोग लिखते हैं ट्राइंगल के लिए, तो दिस विल बी मॉडुलस ऑफ सम क्वांटिटी। ठीक है, तो दिस क्वांटिटी विल बी, अगर मैं इसे डायरेक्टली 3 के इक्वेट कर दूंगी तो दिस a विल बी ±3। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट सिर्फ इतना सा याद रखना है
कि जब भी हमें कोई भी एरिया गिवन होगा क्वेश्चन में कि ट्राइंगल का एरिया 3 है, तो हम क्या करेंगे कि उस एरिया को कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए दोनों साइंस के साथ लेके चलेंगे। एरिया विल बी प्लस माइनस 3 बोथ। यहाँ पर एरिया को हम डिटर्मिनेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। तो दीज वर द 2 पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर application which is to check the collinearity of 3 points. अगर हमें 3 points given हो, उनकी collinearity check करनी हो by using determinants, then how we will do that? Collinearity का मतलब क्या है? 3 points are collinear. This means all the 3 points are lying on a straight line. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग रिवर्स प्रोसेस लेकर चलेंगे। हमें बेसिकली एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है डिटर्मिनेंट्स की टर्म्स में। अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो उन 3 पॉइंट्स के केस में वो कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए मुझे एक कंडीशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो हम क्या करते हैं, हम वो कंडीशन फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए लेट अस सपोज कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। 3 points are collinear. 3 points A, B and C are collinear. This means कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर। कोलिनियरिटी का मतलब ये होता है कि ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करें। Now let us say ABC are collinear. We have assumed this. तो अगर ABC collinear है, that means कि ABC all the 3 points will lie on the same straight line. If they are lying on a same straight line, this means ट्राइंगल ABC कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। क्योंकि अगर मुझे ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है तो इन तीनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को आउट ऑफ द स्ट्रेट लाइन जाना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, दिस मीन्स कि ट्राइंगल ABC कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, यानी कि इन तीनों पॉइंट से हम लोग एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 0, क्योंकि इन तीनों पॉइंट से कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा तो उसका एरिया भी नहीं होगा। दैट इज व्हाई वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 0। तो अगर ट्राइंगल का एरिया 0 है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं वो हमने यहाँ देखा। अगर ABC 3 पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उनको हम लोग, उनसे बनने वाला जो भी ट्राइंगल होगा उसका एरिया हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, and this area is equal to 0. This is basically the condition for linearity. तो यहाँ पर because ABC are collinear, they are lying on a straight line, तो इनसे बनने वाला जो भी ट्राइंगल होगा उसका एरिया 0 होगा। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC, A, B और C के वर्टिसेस हमें पता है x1 y1 x2 y2 and x3 y3। इनसे हम एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। किस तरह से? फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, सेकेंड कॉलम विल कंसिस्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स एंड थर्ड कॉलम में हम लोग एलिमेंट 1 रख देंगे। तो दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग फॉर्म करेंगे यूजिंग द वर्टिसेस, एंड इसे हम हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, and area of this triangle is 0 because all the 3 points are collinear. So this is the condition for collinearity. So 3 points A, B and C are collinear if इनके वर्टिसेस की हेल्प से हम जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे वो डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा, then we can say that these 3 points are collinear. Now the third application is equation of line passing through two given points. अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो भी लाइन है या उन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाली जो भी लाइन है, उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। लेट अस से हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो भी लाइन होगी उस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हाउ वी विल डू दैट? सबसे पहले लेट अस से वी आर गिवन 2 पॉइंट्स A एंड B, और A और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पता है। नाउ लाइन की जो इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है? x + 2y = 3, y + 3y 3x और 3z = 2। इस तरह की इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं या 1 वेरिएबल भी हो सकती है। तो लाइन की जो इक्वेशन होती है उसमें ये 2 वेरिएबल्स होते हैं, बट यहाँ पर जो भी हमें पॉइंट्स गिवन होंगे दिस विल बी लाइक दिस 2 3 और 4 5 इस तरह के गिवन पॉइंट्स में कहीं पर भी हमें x और y जैसी वेरिएबल्स टर्म्स नहीं मिलती हैं। तो लेकिन लाइन की इक्वेशन में तो ये वेरिएबल टर्म्स होते हैं, तो उसके लिए
हम क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं ऑन द लाइन इज जॉइनिंग A एंड B। तो हम यहाँ पर क्या एज्यूम करके चलेंगे कि लेट अस से एक लाइन है जिस पर A और B दोनों पॉइंट्स लाई करते हैं और उसी सेम लाइन पर एक थर्ड पॉइंट भी लाई करता है विच इज P हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x एंड y। तो गिवन पॉइंट्स थे A एंड B and we have assumed that the point P is also lying on the line which is joining A and B. तो नाउ ये जो सिचुएशन बनी वो क्या हुई कि A, P and B all the 3 points are lying on a straight line. That means कि A, P and B all the 3 points are collinear. अगर ये तीनों points collinear हैं that means कि इनसे बनने वाला जो triangle PAB होगा उसका एरिया जो होगा that should be 0. अभी हमने कोलिनियरिटी की कंडीशन पढ़ी, तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन PAB से जो भी ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल PAB का एरिया 0 होना चाहिए। तो यही सेम कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई। PAB ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखेंगे, होगा हाफ इनटू फर्स्ट कॉलम में हम लोग x कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, P का x कोऑर्डिनेट, A का x कोऑर्डिनेट, देन B का x कोऑर्डिनेट। सेकंड कॉलम में हम लोग y कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तीनों पॉइंट्स के एंड थर्ड कॉलम विल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट 1। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इट इज इक्वल टू 0 एंड दिस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस टाइप की ही एक इक्वेशन मिलेगी विच इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स A एंड B। तो इस तरह से एक किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे कि सबसे पहले जिस भी लाइन पर ये दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे उस पर एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे और ये जो भी 3 पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो तीनों कोलिनियर होंगे, कोलिनियरिटी की कंडीशन यूज करेंगे एंड देन जो भी डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा उसे हमें सॉल्व करना है एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड इन दिस केस। नाउ जो भी एप्लीकेशंस हमने डिटर्मिनेंट्स के डिस्कस की, बेस्ड अपॉन दोस लेट अस सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। लेट अस से दिस इज द पॉइंट A1 B1, this is point B and this is point C. ठीक है, A point, B point and C point are given to be collinear. Then हमें ये result prove करना है। तो point A जो है it is A1 B1, point B is given to be A2 B2 and point C is A1 plus A2 B1 plus B2। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो यहाँ पर कोलिनियरिटी की कंडीशन हम लोग लगाएंगे बिकॉज ऑल द 3 पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर। दिस मीन्स ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं दैट मीन्स इन तीनों इन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो भी ट्राइंगल होगा उसका एरिया 0 होना चाहिए। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC is equal to 0. This is the condition for the collinearity. Because these points are collinear, hence the area is 0. अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एरिया विल बी हाफ इनटू डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट कैसे फॉर्म करेंगे, फर्स्ट कॉलम में हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे सभी पॉइंट्स के। तो यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट्स हैं A1 A2 एंड A1 प्लस A2 से हमने एक कॉलम बनाया A1 A2 A1 plus A2। Then the next column will consist of y coordinates of all the 3 points B1 B2 and B1 plus B2। This will form the second column and जो भी third column होगा उसमें हम लोग elements लिखेंगे 1 1 1। This is how the area of triangle ABC whose vertices are known we have written down। अब simply इस determinant को solve करते हैं और देखते हैं क्या हम इस condition पर पहुंचते हैं। Now this half into this determinant is equal to 0। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर मैं इस half को यहाँ से erase कर दूं then the equation will not be affected। अब यहाँ पर इस determinant को हमें solve करना है। determinant को solve करने के लिए हम direct method भी use कर सकते हैं, यानी कि directly से expand कर सकते हैं, determinant की कुछ properties use कर सकते हैं या फिर सास रूल का भी use करके इस determinant को expand कर सकते हैं। तो let us directly expand this determinant। फर्स्ट रो का यूज करके हम लोग expand करते हैं इस determinant को। Expanding this determinant along the first row we will be getting A1 into B2 minus B1 minus B2। Then the next term would be B1 A2 minus A1 minus A2 and the third term would be 1 into A2 B1 plus A2 B2
minus a1b2 minus a2b2. This is just the simple expansion of determinant जो हमने पहले स्टडी कर रखा है. Now we will solve this expression. यहाँ से b2 cancel out हो गया, a2 also gets cancel out, and in this case a2 b2 will get cancel out. So we are left with minus a1 b1 plus a1 b1 plus a2 b1 and minus a1 b2. Solving this again, we are getting a2 b1 is equal to a1 b2, and this is our result which we needed to do. तो सिंपली जो भी कोलिनियरिटी के केस में हमने कंडीशन देखी, वो कंडीशन हमने अप्लाई की, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, एंड वी गॉट द आंसर. Let's move to another question. So our next question is, we have to find the equation of a line which is joining these 2 points A and B. And then we have another question that we have to find the value of A such that B is a point and area of triangle ABD is 3 square units. यहाँ पर हमें 2 points given है, point A and point B. Point A is 1 3 and point B is 0 0. इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो भी लाइन है या इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन है, की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो इस तरह के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है वो क्या होगा, बिकॉज वी आर हैविंग द इक्वेशन ऑफ लाइन. So let us assume that a point P also lies on this line AB. जो भी लाइन AB को ज्वाइन कर रही होगी, उस लाइन पर एक और पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, let us say point P whose coordinates xy is also lying on this line AB. तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई कि A, P and B, all the 3 points are lying on the same straight line. This means all the 3 points are collinear. और अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनसे बनने वाला जो भी ट्राइंगल होगा, तो दैट ट्राइंगल विल बी हैविंग एन एरिया इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ट्राइंगल PAB जो होगा उसका एरिया 0 होगा. तो दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, एंड यहाँ पर इस कंडीशन को यूज करते हैं. ट्राइंगल PAB का एरिया हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो दिस वुड बी हाफ इनटू, फर्स्ट कॉलम में हम x कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, P का x कोऑर्डिनेट x, A का x coordinate 1 and B का x coordinate 0. Then second column will consist of y coordinates, P का y coordinate y, A का y coordinate 3 and B का y coordinate 0. And third column will consist of 1 1 and 1. So this is how we have written down the area of triangle PAB. तो इस चीज को हम सिर्फ सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, एंड वी विल गेट द डिजायर्ड इक्वेशन. इसे हम डायरेक्टली एक्सपैंड कर लेते हैं. हम डायरेक्टली एक्सपैंड करते हैं तो we will be getting along the third row, if we expand this determinant, we will be getting 1 into 3x minus y is equal to 0. तो यहाँ से 3x minus y is equal to 0 is the equation of the required line. तो जो भी लाइन A और B से पास कर रही होगी या A और B को ज्वाइन कर रही होगी, उस लाइन की इक्वेशन आ गई 3x minus y. This is the same procedure we have discussed in theory part also. Now let's move to the another question, that is हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर d k0 एक पॉइंट है such that area of triangle ABD is 3 square units. यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि this is the second part. तो area of triangle ABD is given to be 3 square units. हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी कि अगर किसी ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन हो तो कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए उसका एरिया हम लोग कंसीडर करेंगे विद बोथ द साइंस. दोनों साइंस का यूज करके हम उसका एरिया कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए यूज करेंगे. तो यहाँ पर ट्राइंगल ABD का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स है. दैट मीन्स कि फॉर आवर कैलकुलेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज प्लस माइनस 3. तो डी पॉइंट हमें पता है, ए एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD would be half into a determinant. First column will be the x coordinate. A का x coordinate है 1, B का x coordinate है 0 and D का x coordinate है k. Second column will consist of y coordinates. A का y coordinate 3, B का y coordinate 0, D का y coordinate भी 0. Third column will consist of element 1 and this will be equal to plus minus 3. हम simply इस चीज को solve करते हैं and we will get the value of k out of it. तो यहाँ पर let us expand this determinant using first column. So this will be half into 1, यहाँ से 1 into 0 minus 0 and this will be plus k
इंटू थ्री इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, थ्री के डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ के एज प्लस माइनस टू। दिस इज आर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। तो इस तरह से ट्राइंगल का एरिया अगर हमें गिवन होगा तो उसे हम दोनों साइंस के साथ कंसीडर करके चलेंगे while solving the questions. So this was all about today's lecture. In this lecture what we have discussed is, हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले हम लोगों ने कंजुगेट एलिमेंट से स्टार्ट किया, देन वी मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, किस तरह से दो डिटर्मिनेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स की एप्लीकेशन के बारे में स्टडी किया। ये एप्लीकेशन स्टडी की एंड ये एप्लीकेशंस के बेस पर हमने क्या किया कि जो भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने की ट्रिक्स दी। So this was all about today's lecture. In the upcoming lectures we will be discussing about Cramer's rule, यानी कि जो भी सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का उसे हम डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। In the next lecture we will be discussing about that. Meanwhile, if you are having any query or any doubt related to whatever we have studied till now, let me know in the comment section. Until then, keep learning, keep practicing, and stay tuned.